Hello and welcome to Scholars Point. Friends, today we will study about gibberellins and the enzyme streptokinase and the cholesterol lowering agent statins. Okay. First of all, we will study about the gibberellins. तो हम gibberellins के बारे में बात करेंगे. Gibberellins are also called gibberellic acids because of their acidic nature. Gibberellins को हम gibberellic acids भी बोलते हैं. Okay? Gibberellins are group of plant growth hormones और phytohormones या plant growth regulators ऐसा भी बोला जाता है या growth inducers भी कहा जाता है. Okay? मेनली प्रोड्यूस बाय हायर प्लांट्स. तो कहाँ बनते हैं जिब्रेलिन्स? एक तो हायर प्लांट्स में बनते हैं जैसे एंजियोस्पर्म्स और फंजाई. जो किंगडम फंगाई हम स्टडी करते हैं तो किंगडम फंजाई में जो कुछ वैरायटी होती है, अलग अलग स्पीसीज होती है, तो उनमें बनता है. जैसे यहाँ जिब्रेला फ्यूजिकोराई इज द नेम ऑफ द फंगल variety from which first of all it is isolated, and that is why by the name of Gibberella fungus, the name given to these phytohormones as a gibberellins or gibberellic acids. Okay, mainly produced by higher plants and fungi. Main effect of the gibberellins is to promote growth by stem elongation. They elongate internodes, means they induce internode elongation and thereafter stem elongation. In between two nodes of stem, the part is called as internode, and here they allow internodal elongation. Okay, and thereby stem elongation. Means this is the main effect of the plants. This is the main effect of the plant growth hormones into higher plants, particularly angiosperms. Gibberellins first isolated by two Japanese scientists, Yabuta and Sumuki in 1938. They first of all isolated gibberellins from the rice seedlings infected with the fungus Gibberella fujicorae. In a rice field, some rice seedlings showing abnormal growth than the other normal seedlings. सीडलिंग्स क्या होते हैं? जब सीड जर्मिनेशन होती है उसके बाद जो छोटा प्लांट होता है, जर्मिनेशन के बाद कुछ दिनों तक वो छोटा रहता है, जिसे हम सीडलिंग बोलते हैं. तो सीडलिंग सपोज इतनी साइज की है, और अगर जिब्रेलिया फंगस ने इन्फेक्शन किया है राइस प्लांट्स के ऊपर, सीडलिंग्स के ऊपर, तो उसकी हाइट एबनॉर्मल हो जाएंगी, बड़ी देन द नॉर्मल. दे हैव अ मच more height than the normal seedlings, and that is why such seedlings are called foolish seedlings. This happens because of their increased stem elongation occurs because of the gibberellins provided by Gibberella fungus to the rice seedlings. Okay. Gibberellins first isolated by two Japanese scientists, Yabuta Sumuki, in 1938 from the rice seedlings infected with the fungus Gibberella fujicorae. Okay. Chemically, gibberellins are tetracyclic terpene acid or tetracyclic terpenoids. Okay. And about 15 types of gibberellic acids have been isolated. आज तक कम से कम 15 प्रकार की डिफरेंट टाइप्स की जिब्रेलिक एसिड्स या जिब्रेलिन्स आइसोलेट की गई है, और वो प्रैक्टिकली यूज़ की जाती है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, फील्ड में. ओके. तो यहाँ हम अभी देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या फिर उनके यूजेस ऑफ जिब्रेलिन्स. तो कुछ लोग गिब्रेलिन्स भी बोलते हैं, लेकिन जिब्रेलिन्स बोलना चाहिए. ओके. दे आर यूज्ड, मीन्स जिब्रेलिन्स आर यूज्ड इन ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी
and hence induce seed germination. They break seed dormancy, means seed remain inactive for particular period due to internal factors, that is called seed dormancy. But when gibberellins are spread or gibberellins are formed inside the seed, then seed allow germination, means active growth occurs. Dormancy means active growth suspended, and germination means active growth occurs. Gibberellins promote active growth of seed, that is called germination. तो जिब्रेलिन्स क्या करते हैं, सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करके सीड जर्मिनेशन अलाउ करते हैं. ये पहला रोल हो गया, उनका एप्लीकेशन हो गया. तो हमें अगर कुछ सीड्स में जर्मिनेशन कैरी ऑन करना है डॉर्मेंट सीड में, तो हम जिब्रेलिन्स अप्लाई करके उन्हें जर्मिनेट कर सकते हैं. सेकंड एप्लीकेशन है, दे आर यूज्ड टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन केस ऑफ एप्पल्स, पेयर एंड टोमेटो. ये टाइप के जो प्लांट है एप्पल, पेयर और टोमेटो, तो उनमें जिब्रेलिन स्प्रे करके हम पार्थिनोकार्पी का मतलब फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुए बगैर फर्टिलाइजेशन हुए बगैर हम उनमें फ्रूट फॉर्म कर सकते हैं. जैसे हमें मालूम है कि एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट फॉर्म होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट है जैसे नेचुरल पार्थिनोकार्पिक प्लांट है बनाना, तो उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हुआ भी नहीं तो भी हमें बनाना के फ्रूट्स मिलते हैं क्योंकि वो पार्थिनोकार्पिक है. लेकिन इन प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो सकता है, फिर भी पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं हम अगर हम जिब्रेलिन्स अप्लाई करेंगे एप्पल, पेयर और टोमेटो के ऊपर. ओके, तो पार्थिनोकार्पी से क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट होंगे लेकिन उनमें सीड्स फॉर्म नहीं होंगे, तो सीडलेस फ्रूट भी मिल सकते हैं हमें विदाउट फर्टिलाइजेशन. मीन्स पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ज़्यादातर विदाउट सीड्स होते हैं. दे ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट. जिन प्लांट में डे लेंथ ज़्यादा रिक्वायर होती है और नाइट छोटी लगती है, छोटी होनी चाहिए फ्लावर प्रोड्यूस होने के लिए, तो उन प्लांट को हम लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं. तो इनमें लॉन्ग डे प्लांट्स में एलडीपी में अगर जिब्रेलिन स्प्रे किए तो हमें फ्लावरिंग अचीव कर सकते हैं, हम उनमें फ्लावरिंग मिल सकती है. और लास्ट वाला जो है, टू एनलार्ज द साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट्स जिब्रेलिन्स आर यूज्ड. आजकल हम देखते हैं कि ग्रेप्स कुछ छोटे साइज के होते हैं, कुछ थोड़े बड़े साइज के होते हैं और कुछ थोड़े लंबे भी होते हैं. थोड़े साइज़ उनकी ज़्यादा होती है, लंबाई ज़्यादा होती है. तो ग्रेप की साइज़ एनलार्ज करने के लिए हम जिब्रेलिन्स यूज़ करते हैं फील्ड्स में. ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गए सब जिब्रेलिन्स के. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट जिब्रेलिन्स. नाउ अबाउट टू another substances. One is the streptokinase enzyme and second is statins. Okay, both are microbial products. Streptokinase means SK enzyme is produced by bacterial species Streptococcus species. Okay, Streptococcus bacteria, streptokinase उसके नाम से ही streptokinase उसे रखा गया है. It has फाइब्रिनोलाइटिक और थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्ट, यानी कि ब्लड क्लॉट फाइब्रिनोलाइटिक, फाइब्रिनो मीन्स फाइब्रिन मीन्स ब्लड क्लॉट, लाइटिक मीन्स उसे डिजोल्व करने वाला, डाइजेस्ट करने वाला, ब्रेक डाउन करने वाला. थ्रोम्बो का मतलब भी ब्लड क्लॉट होता है या कोएगुलेशन होता है, उसे डिजोल्व करने वाला, यानी कि वो ब्लड डिजोल्व करता है, ब्लड क्लॉट डिजोल्व करता है. इट हैज़ स्ट्रेप्टोकाइनेज हैज़ फाइब्रिनोलाइटिक और थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्ट, हैंस इज़ यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर. अगर ब्लड वेसल्स में क्लॉट फॉर्म होता है, ब्लड क्लॉट, तो उसे डिसॉल्व करना ज़रूरी होता है. अदरवाइज हार्ट अटैक या फिर अगर कोई ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल में ये ब्लड क्लॉट ब्लॉक करता है तो ब्लड सप्लाई रुक जाएगा उस ऑर्गन का, और उससे क्या होगा कि ऑर्गन प्रॉब्लम में आ सकता है. जैसे हार्ट में हार्ट अटैक हो जाएगा. अगर ब्रेन की तरफ जाने वाली जो ब्लड वेसल होती है उसमें अगर ब्लड क्लॉट ब्लॉक हो गया, वो वहाँ वेसल को ब्लॉक कर देगा, तो आगे ब्लड पास होगा ही नहीं, सप्लाई होगा ही नहीं, तो उससे ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाएगा. ब्रेन एक तो ब्रेन डेड होगा या कोमा में चला जाएगा. तो ब्लड क्लॉट बहुत डेंजरस होता है अपने लाइफ के लिए.
तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं फॉर्म होते, क्योंकि नेचुरली उसमें ब्लड एंटीकोएगुलेंट होते हैं। ओके, तो ब्लड क्लॉट स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है? ब्लड क्लॉट बस्टर है फॉर क्लियरिंग ब्लड क्लॉट्स इन द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स विथ रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। जिन पेशेंट में हार्ट अटैक की रिस्क है, किस वजह से? अगर उनके ब्लड में क्लॉट्स फॉर्म होते हैं तो वो क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑफ्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल वैरायटी। ओके, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम टीपीए भी कहते हैं। टीपीए का मतलब क्या होता है? टी फॉर टिश्यू, पी फॉर प्लाज्मिनोजेन, ए फॉर एक्टिवेटर। ये टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर की जो ब्लड क्लॉट डिसॉल्व करने वाला सब्सटेंस है। टीपीए इज अ प्रोटीन एंजाइम which dissolves blood clots. For example, streptokinase obtained from a streptococcus species, while serine protease is the naturally producing TPA inside the blood vessels to prevent the clots. Okay. सेकेंड सब्सटेंस की तरफ हम जाने वाले हैं अभी, जिसे हम स्टैटिन्स कहते हैं। स्टैटिन्स किसे दिया जाता है? अगर कोई पेशेंट है हार्ट का या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ का कि जिसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हाई होती है, तो ये स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअरिंग एजेंट है। तब इन मेडिसिन्स स्टैटिन्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे हम ब्लड थिनिंग एजेंट्स या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी कहते हैं। स्टैटिन्स आर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स ऑफ्टेन फ्रॉम ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस। ये जो वैरायटी है इसकी, यानी कि ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है, उसकी एक वैरायटी है मोनेस्कस परप्यूरियस। उससे हम स्टैटिन्स ऑफ्टेन करते हैं। Statins are produced on commercial scale to treat high cholesterol level in blood. तो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल हाई है उसे ट्रीट करने के लिए हम स्टैटिन्स थोड़े कमर्शियली यूज़ करते हैं, ताकि उससे मेडिसिन्स ज़्यादा लोगों को सप्लाई हो सके। ये स्टैटिन ज़्यादा लोगों को सप्लाई होना चाहिए, इसलिए उसे लार्ज स्केल कमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है। स्टैटिन्स एक्ट्स एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस। जो कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस करने वाला एंजाइम होता है उसकी जगह ये स्टैटिन ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? अगर स्टैटिन वो रिसेप्टर में ब्लॉक करेंगे, बाइंड करेंगे, तो एंजाइम नहीं आ सकेगा और कोलेस्टेरॉल फॉर्मेशन स्टॉप होगा, जिसकी वजह से ब्लड में कोलेस्टेरॉल की लेवल कम होने लग जाएंगी, क्योंकि कोलेस्टेरॉल सिंथेसाइज नहीं होगा, क्योंकि उन सेल्स में, उन साइट्स में कोलेस्टेरॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम की जगह ये स्टैटिन क्या काम करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर काम करता है। तो वो कॉम्पिटिटिवली उसके कंपटीशन में ये आ जाता है और कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिट कर देता है। इसकी वजह से उन्हें हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं, कोलेस्टेरॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम के। ओके, तो इस तरह से स्टैटिन काम करते हैं। लेकिन नॉर्मली स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल की लेवल अगर ज़्यादा कम कर देते हैं तो वो भी हार्मफुल होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल तो लगता ही है, गुड कोलेस्ट्रॉल लगता ही है। अगर इसकी वजह से गुड भी फॉर्म नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसकी वजह से उन्हें बहुत केयर से, अच्छी तरह से गाइडलाइन लेके यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर फॉर्मेशन सिंथेसिस बंद हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे बनने वाले कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव जैसे जो हार्मोन्स है हमारे स्टीरॉयड हार्मोन, तो उनका भी सिंथेसिस बंद हो जाएगा। जैसे सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, फिर दूसरे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स होते हैं वो स्टीरॉयड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजेंस, वो भी फॉर्म नहीं होंगे।
सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन नहीं तैयार होंगे तो फिर क्या होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा और दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से स्टैटिन्स को केयरफुली लेना है, जब ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी, अदरवाइज़ नहीं। तो हम डाइटरी लिपिड्स या फैट्स को कम करके कोलेस्टेरॉल कम कर सकते हैं और एक्सरसाइज ज़्यादा करके भी कोलेस्टेरॉल कम कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट streptokinase, statins and the gibberellins. Okay, if you like this video, please share to your friends, and if not subscribe my channel, please subscribe the Scholars Point. Okay, thanks for watching my video.